کہ آج کل جو طلاقیں ہو رہی ہیں تقریباً 70% اس سوشل میڈیا کی وجہ سے. دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. ایسی صورتحال میں کہ اگر عورت عدت میں ہے، بیمار ہے، تو باہر جا سکتی ہے دوائی لینے کے لیے، بالکل اس کے لیے کوئی یعنی کہ حرج نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان رقیہ بخت اور آپ دیکھ رہے ہیں ضرور رمضان سیزن. ناظرین، آج ہم بہت ہی اہم موضوع کے متعلق جو ہے گفتگو کرنے والے ہیں. ایک ایسا جو نسور ہے جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پھیلتا جا رہا ہے، طلاق، جس کو کہ بہت ناپسند کیا فرمایا گیا ہے، لیکن پھر بھی یہ معاشرے میں اتنا زیادہ بڑھ رہا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. اور دیکھا جائے تو بہت لوگ اس کی وجہ سے پریشان ہیں. لوگوں کی اتنے سال کی 30 40 سال کی شادیاں جو ہیں وہ اینڈ پہ آ کر آج کل ڈیورس پر ختم ہو رہی ہیں. آخر اس کی کیا وجوہات ہیں، اسی کے متعلق ہم گفتگو کریں گے. اور ہمارے ساتھ ہمارے مہمان خصوصی موجود ہیں فقہ حنفیہ سے مولانا تنویر احمد صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور فقہ جعفریہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سید مبشر حسن نقوی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. سر، جیسا کہ آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں طلاق کی جو وجوہات ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں. کیا وجہ ہے جو طلاقیں جو اتنی زیادہ بڑھ رہی ہیں، ذرا آپ روشنی ڈالیے گا اس میں. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. نکاح اور طلاق جو ہے یہ اسلام کے اندر یہ موجود ہے. نکاح کی بھی بڑی اہمیت ہے اور طلاق کے اوپر بھی اسلام نے ہمیں اجازت دی ہے. نکاح جو ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے، لیکن بہت ساری صورتوں میں طلاق جو ہے وہ قرآن اور احادیث کی روح سے جائز عمل ہے، بالکل ٹھیک عمل ہے. کہ اگر میاں اور بیوی کے درمیان نہیں بن پاتی، ان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پاتی، تو اسلام نے ایک طریقہ بتایا ہے کہ اس کو آسان طریقے سے آپ طلاق دے کر علیحدگی اختیار کر لیں. بڑھتی ہوئی طلاقوں کے پیچھے میں یہ کہوں گا کہ ہمارے میڈیا کا بڑا تعلق ہے. کہ ہمارے جو میڈیا پر جو دکھایا جاتا ہے، زیادہ تر ہمارے جو ڈرامے وغیرہ ہیں تو ان میں زیادہ تر اسی طرح کے موضوعات کو ہی دکھایا جاتا ہے. کہیں ساس جو ہے وہ بہو کی دشمن ہے، کہیں بہو جو ہے وہ ساس کی دشمن ہے. یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کہیں پوزیٹیو جو ہے نا دونوں کرداروں کو نہیں دکھایا گیا. میں نے تو آج تک نہیں دیکھا کہ کسی جگہ پر ساس اور بہو کے کردار کو اچھا کر کے یا پوزیٹیو انداز سے دکھایا گیا ہو. ایسا نہیں ہے. لہٰذا جب بھی آپ دیکھیں گے تو ساس کو یا ظالم دیکھیں گے یا بہو کو کہیں ظالم دیکھیں گے، تو ایسا نہیں ہے. بلکہ یہ ساس جو ہے وہ ایک ماں ہے اور بہو جو ہے وہ بیٹی ہے. تو لہٰذا یہ جو معاملات ہیں گھریلو جو گھرستی ہوتی ہے، اس میں اگر ہم دیکھیں اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ اس نے اخلاق کا مظاہرہ کیا جائے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور بہت ساری چیزوں کو درگزر کر کے اگر چلا جائے تو نوبت یہاں تک نہیں پہنچ سکتی. اگر شریعت اور اسلام کے اصولوں کو فالو کیا جائے، ان پر عمل کیا جائے، تو کئی فیملیاں جو ہیں وہ آباد ہو سکتی ہیں، گھر کئی آباد ہو سکتے ہیں. اور بالکل ایسا کرنا چاہیے. جب شریعت نے ہمیں کہا ہے کہ آپ میانہ روی کے ساتھ چلیں اور آپس میں اخلاق اور اتحاد رکھیں، تو انشاءاللہ یہ معاملات نہیں پہنچیں گے. اور ایک اور آخری بات مختصر سی میں عرض کرتا ہوں کہ عورتوں کی بے جا فرمائشیں جو مردوں پر ہوتی ہیں، اس پر بھی یعنی کہ وہ کافی گھر جو ہیں وہ تباہ ہوتے ہیں. اگر عورتیں اپنی بے جا فرمائش نہ کریں، مرد کی کیپیسٹی کے مطابق، اس کی آمدن کے مطابق اگر ساتھ دیں اور چلیں، تو پھر بھی کئی گھر آباد ہو سکتے ہیں. جی قبلہ، ذرا آپ روشنی ڈالیے گا. جیسے کہ مولانا صاحب نے بہت اہم جو ہے پوائنٹ نوٹ کیے، ان کا میں نے کیا ہے، جو وہ کہہ رہے ہیں کہ کنٹینٹ جو آج کل ہمارا دکھایا جا رہا ہے اس کا بھی بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ عورتوں کی جو خواہش ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. اس صورت میں کہ اگر عورت اس صورت میں بھی ساتھ دے، مطلب جو بھی حالات چل رہے ہیں اس کے باوجود بھی اگر طلاق ہو جائے، تو مطلب کیا جائے، کیا صورتحال ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، طلاق آج کل ہمارے اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں ایک بہت
आम सा मसला बिल्कुल। बन चुका है। लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा आम समझ रहे हैं, समझ कॉमन समझ रहे हैं, जबकि ये इतनी कॉमन सी बात है नहीं। हम्म, जहाँ तलाक एक हलाल अमल है, हम्म, वहीं पर तलाक रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक एक नापसंदीदा अमल भी है। रसूल खुदा ने पसंद नहीं फरमाया कि लोग ऐसे तलाक़ें देते फिरें, बिल्कुल। क्योंकि ये शादी ये कोई, जिस तरह हमारे यहाँ एक मुहावरतन बोला जाता है कि ये कोई गुड़िया या गुड़ा गुड्डी का का ये खेल कोई नहीं। खेल नहीं है, गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है, ये दो लोगों की ज़िंदगियों का सवाल होता है। अच्छा। इस तरह देखें, अगर मर्द ने तलाक दे दी, इसका अगर हम देखें थोड़ा आगे अगर हम दिक्कत करें तो ये कौन से बड़े ये जुराइम में शामिल हो सकती है ये बात, और ये किस तरह एक बहुत बड़ा गुनाह बन सकती है। देखिए, मर्द ने तो औरत को तलाक दे दी, हमारे मुआशरे में मर्द को दूसरी लड़की बहुत आसानी से मिल जाती है, बिल्कुल। कंवारी भी मिल जाती है, बिल्कुल। लेकिन उस मसला। तलाक शुदा औरत के लिए फिर आगे रिश्ता तलाश करना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल बन जाता है। यही वजह है कि अहले बैत ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को काफ़ी नापसंद किया है। अब तलाक की वजूहात की जानिब चलें तो सबसे ज़्यादा जो इस चीज़ की वजूहात हैं वो आजकल हमारा सोशल मीडिया बन चुका है। सोशल मीडिया का यकीनन ये जुमला मेरा कहना अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा कि आजकल जो तलाक़ें हो रही हैं तकरीबन 70% इस सोशल मीडिया की वजह से हो रही हैं। 70 to 80% ये तकरीबन सोशल मीडिया की वजह से तलाक़ें हो रही हैं। तलाक़ों की शरह बड़ी सी वजह से रही है। पहले ये जो फेसबुक अगर हम ले लें, व्हाट्सएप ले लें, इंस्टाग्राम ले लें या ट्विटर ले लें, तो यहीं पर जी एक अगर कोई शादीशुदा औरत है, उसने अपने पास मोबाइल रखा हुआ है, उधर से कोई लड़का, तो पहले इंटरेस्ट बात करेंगे, मैसेज करेंगे, फिर इसी तरह ये चीज़ एक तो तलाक़ों की बड़ी वजह बन रही है जी, जिसकी वजह से बीवी अपने शौहर से चिड़चिड़ापन शुरू कर देगी, उससे लड़ाइयाँ करना शुरू कर देगी, फिर आखिरकार उसका नतीजा क्या होगा, तलाक हो जाएगी। अब देखिए, ऐसी सूरत में क्या इस्लाम ने तलाक को पसंद किया? अगर ऐसी सूरत में तलाक हो जाए, नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं किया। इसके अलावा दूसरी चीज़ तलाक की बड़ी वजह, तलाक की दूसरी बड़ी वजह ये जो कोर्ट मैरिजेस हो रही हैं, वो भी यकीनन सोशल मीडिया से ही बात फैल कर बाहर आएगी। जब लड़का और लड़की दोनों भाग कर जाएंगे, जाकर वो कोर्ट मैरिज कर लेंगे, जब वो कोर्ट मैरिज करेंगे, फिर लड़की वाले ज़ाहिर है जो लड़की पहले से शादीशुदा थी उसके वालिदैन राज़ी नहीं होंगे, उधर लड़के के वालिदैन राज़ी नहीं होंगे, चूँकि हमारे माशरे में हमारी सोसाइटी बिल्कुल, अगर मैं ये बात करूँ तो सुन्नत के ख़िलाफ़ चल रही है। अगर एक मैं पहलू से बात करूं, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली जो शादी की थी हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा से, तो वो उनसे एज में काफ़ी बड़ी थी। हमारे यहाँ अगर एज में ज़्यादा बड़ी ना भी हो, अगर वो थोड़ी सी शादीशुदा है, कोई साल 2 साल का भी फ़र्क है, तो वालिदैन इस चीज़ को बहुत बुरा समझते हैं कि हमारे बेटे की उससे शादी ना हो, वो तलाक याफ्ता है, वो इससे एज में बड़ी है। तो ये एक वजह। जब वालिदैन नहीं मानेंगे तो उन्होंने जाकर कोर्ट मैरिजेस करनी है। जब वो कोर्ट मैरिज करेंगे, कल को फिर उसके वालिद नहीं मानेंगे, लड़के के वालिदैन नहीं मानेंगे, उधर लड़की के वालिदैन नहीं मानेंगे, तो ये चीज़ भी एक तलाक की बहुत बड़ी वजह है, जो कि मजबूरन उन्हें वहाँ पर अलहदा होना पड़ेगा। चूँकि ये जिस तरह कहते हैं ना, 2-4 दिनों का जुनून होता है, 2-4 महीनों का जुनून होता है, उसके बाद जब उन्होंने आगे सोचना है, आगे फ्यूचर अपने की प्लानिंग करनी है, तो मजबूरन उन दोनों को अलहदा होना पड़ेगा, अलग होना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी वजह है हमारे माशरे में। इसके अलावा तीसरी चीज़, हमारी सोसाइटी का ये ब्रॉड माइंडेड के नाम पर कि हम जी बड़े खुले मिजाज वाले हैं, हम बड़े ब्रॉड माइंडेड हैं, इस वजह से वो जो नामहरम हैं, जिन्हें शरीयत ने नामहरम करार दिया है, उनसे एक ख़ास दूरी अख्तियार न करना, वो करीब हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो ये चीज़ भी एक बहुत बड़ी वजह बनती है। उन्हें आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे में इंटरेस्ट बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से तलाक की शरह बढ़ने लगती है। तो यकीनन इसमें अगर मैं बात करूं तो अक्सर व बेशतर कसूर हमारी सोसाइटी का है, इस सोशल मीडिया का है। ये वजह है जो कि तलाकों की एक बड़ी वजह। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। फिर कुछ ऐसा कंटेंट खवातीन देखती हैं जहाँ पर वो गाड़ियाँ और ये सब देखती हैं, फिर उनकी ख्वाहिशात बढ़ती हैं, तो यकीनन इस वजह से भी वो बदगुमान हो जाती हैं और फिर भटक जाती हैं। सर, जैसा कि आपने बात की अभी किबला के आजकल कोर्ट मैरिजेस हो रही हैं, तो फिर जैसे देखा जाता है कि ना एक जगह कोर्ट मैरिज, एक जगह तलाक हुई है कोर्ट में और दूसरी जगह फौरन ही ना उधर शादी कर दी जाती है, तो इस पे आप जरा रोशन करेगा कि इस्लाम में इसको कैसे देखा गया है? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। तलाक के बाद औरत के लिए इद्दत जो है वो ज़रूरी है, लाजिम है। शरीयत ने उसके ऊपर बिल्कुल यानी कि हद मुकर्रर की है कि तलाक के फ़ौरन बाद जो है
वो औरत नया निकाह नहीं कर सकती, जिसके लिए 3 महीने तलाक याफ्ता जो औरत है उसको 3 महीने इंतज़ार करना होगा, जिसको इद्दत कहा जाता है। इद्दत गुजारने के बाद वो निकाह करे। अगर कोर्ट में ऐसा हो रहा है तो ये शरन जो है वो नाजायज़ है, बिल्कुल गुनाह है। जो कर रहे हैं, जो करवा रहे हैं, वो गुनाह कबीरा के मुर्तकब है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी तरह अगर किसी औरत का शोहर फोत हो चुका है तो उसके लिए भी कुरान हकीम ने इद्दत रखी है, तो वो इद्दत जो है वो 4 माह और 10 दिन की है। और ये यानी कि वो ख़वातीन हैं जिनके शोहर वफ़ात पा गए, यानी कि जो बेवा है उसके लिए 4 माह और 10 दिन की इद्दत है। जो तलाक याफ्ता हैं उनके लिए 3 महीने की इद्दत है, ये ज़रूरी है। अच्छा, अगर औरत हामिला है यानी कि बच्चा पैदा होने वाला है, उसके लिए फिर ये है कि अगर बच्चा पैदा हो जाए, बेशक वो 1 दिन बाद ही पैदा हो जाए, यानी कि तलाक हुई या वो बेवा हुई तो उसके 1 दिन बाद ही अगर बच्चा पैदा हो गया तो उसकी इद्दत ख़त्म हो गई, तो वो अगला निकाह कर सकती है। आम सूरत हाल में ऐसा ही है कि औरत को तलाक याफ्ता को कम से कम 3 महीने इंतज़ार करना पड़ेगा। किबला ज़रा आप इस पर रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल हज़रत बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जब दीन ने एक हद मुकर्रर कर दी है, पहले तो कोई तलाक हो गई आपके दरमियान जो कुछ भी एक मामला हुआ, अब दीन ने आपके ऊपर एक हद मुकर्रर कर दी है, जो एक हद है कि इतना अरसा इद्दत है। जब आप इद्दत पूरा करेंगे, चाहे वो हस्बैंड की डेथ हुई चाहे तलाक हुई, तो इद्दत को मुकम्मल करना ज़रूरी है। अगर वो इद्दत को मुकम्मल नहीं करते तो बिल्कुल गुनाह का मर्तकब होंगे और वो गुनाह करेंगे। अच्छा, ये भी है कि इद्दत के बारे में ना इस्लाम में क्या कहा गया है, क्योंकि बहुत से लोग बहुत सी बातें कहते हैं, जैसे कि अगर खातून बीमार हो जाती है लेकिन उसके शोहर की वफात हुई है या तलाक हुई है, उसकी वो इद्दत में है, तो उस सूरत में वो बाहर जा सकती है दवाई लेने के लिए, या क्योंकि ये ऐसी सिचुएशन बन सकती है। और दूसरी कि जब कफालत करने वाला घर में कोई ना हो, एक शोहर था उसकी वफात हो चुकी है और एक बीवी बची है जिसको घर संभालना है, तो उस सूरत में उसकी इद्दत की क्या सूरत हाल बनेगी? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। इस्लाम जो है बहुत आसान मज़हब है, हमने इसको अपने लिए खुद ही मुश्किल बना लिया है। बिल्कुल आसानी है, इसमें कोई यानी कि ज़बरदस्ती नहीं है। ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ऐसी सूरत हाल में कि अगर औरत इद्दत में है, बीमार है, तो बाहर जा सकती है दवाई लेने के लिए, बिल्कुल उसके लिए कोई यानी कि हर्ज नहीं है। और इसके अलावा अगर कफालत करने वाला कोई नहीं है, वो खुद कहीं अगर जॉब करती हैं और अगर कोई यानी कि रोज़ी का वसीला अगर करने के लिए घर से बाहर जाती हैं, तो उनके लिए जाना दुरुस्त है। लेकिन ये सूरत हाल देखी जाएगी कि खातून जो हैं अगर उनके कोई महरम हैं जो कमा कर उसको खिला सकते हैं, तो फिर तो ज़रूरी है कि वो घर बैठे और इद्दत पूरी करे। अगर आजकल के दौर में कौन महरम जो है हमारा एहसास करता है या हमें खाना देता है, आजकल तो नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है, यानी कि वो हो सकता है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ ना कि बामरे मजबूरी अगर घर से बाहर जाना पड़ जाए तो उसमें हर्ज कोई नहीं है, लेकिन वो है इद्दत में, बापर्दा बाहर जाएं, जो वक्त है उसका वो गुजार कर, या कुछ लेना है, दवाई लेनी है, या घर में कुछ सामान खाने का लेने के लिए कोई नहीं है, अगर वो बाहर जाती हैं तो वो फ़ौरन यानी कि अपना जो काम है उसको करके घर में तशरीफ़ ले आए, बैठें, वो अपनी इद्दत के अयाम जो है वो इस तरह पूरे कर सकती हैं, इसमें हर्ज कोई नहीं। किबला फ़िक्र जाफिया में इसके बारे में क्या कहा गया और क्या कोई लिमिट भी रखी गई है कि अंधेरा होने से पहले आप वापस आ जाओ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो हमें इद्दत का मतलब समझना है कि इद्दत कहते किसे। लोगों ने फ़कत ये समझ लिया कि अगर घर से बाहर निकलेंगे तो इससे वो अल्लाह माफ़ करे जी वो इद्दत में नहीं बैठ रही है, फिर कोई ऐसा वैसा मामला है। अब देखिए, एक लड़की है जो कि पहले बेवा हो गई या फिर तलाक हो गई उसे, उसके वालिदैन अगर किसी दूसरे घर में रहते हैं, उसके वालिद या वालदा या भाई या बहन खुदा न खास्ता किसी की डेथ हो गई, अब क्या वो अपने घर से बाहर नहीं निकलेगी? बिल्कुल निकलेगी, क्योंकि यहाँ पर एक मजबूरी जाहिर होती है, एक मजबूरी का अमर है। इसी तरह अगर औरत का कोई और कमाने वाला नहीं है, ये भी एक मजबूरी है। सबसे पहले हमने समझना है कि इद्दत कहते किसे हैं। इद्दत का मतलब है अपनी तज़ईन और आराइश करना।
सज संवर कर घर से बाहर निकलना और इस अंदाज से सज संवर कर निकलना जिस तरह वो अपने शौहर के होते हुए सजा संवरा रखती थी, जिस तरह आजकल रात में नाइट क्रीम्स का यूज करना, इसके अलावा जी काजल वगैरह लगाना, ब्लीचेस वगैरह करना, ये चीजें हैं जो कि इद्दत में नहीं करना चाहिए। इसके अलावा घर से बाहर भी बाअमरे मजबूरी निकला जा सकता है। अगर कोई मजबूरी ना हो तो घर में रुके। इद्दत कहते हैं सोग मनाने, कि अपने खामद का सोग मनाए। इद्दत इसे नहीं कहते कि बस उससे तो जान छूट गई, ना कोई उसका ना कोई सोग है, ना कोई ऐसा वैसा मामला है, बस घर पे ऊपर शर्त लगी है कि जी घर से बाहर नहीं निकलना, घर के अंदर वो सब कुछ कर रहे हैं जो कि इद्दत में नहीं करना चाहिए। ये भी कहा जाता है ना कि अगर आप बापर्दा होते हो इद्दत के दौरान तो शोहर को उसकी तकलीफ पहुंचती है, या फिर अगर आप इद्दत मुकम्मल कर रहे हो तो फिर इसका सवाब शोहर को पहुंचता है। क्या ऐसा भी कुछ है? नहीं नहीं, ऐसा कोई चीज नहीं है कि जी वो सवाब इसके इद्दत गुजारने से, ये कि इसके लिए अलग से मसला है, वो इसका गुनाह सवाब है, वो उसके बेचारे मरहूम खामद का कोई गुनाह सवाब नहीं है। हर इंसान अपने अमाल का खुद जिम्मेदार है। ये रसूल खुदा ने खुद हुज्जतुल विदा के मौके पर भी फरमाया था कि बाप के गुनाह, अगर कोई बाप गुनाह के इर्तिकाब करे तो उसकी सजा बेटे को नहीं दी जा सकती, अगर कोई बेटा गुनाह के इर्तिकाब करे तो उसकी सजा उसके वालिद को नहीं दी जा सकती। तो ऐसा कोई नहीं है। उसका बेचारा खामन तो मर गया या उसके खामन ने तो उसे फारिग कर दिया, तलाक दे दी, तो अब ये तो नहीं कि अगर कोई खातून करती रहे अमल बुरा तो वो उसका भी गुनाह सवाब उसके खामन के नामा अमाल में मुंतकिल होता रहे। ऐसा नहीं, खुदावंद आलम की जात आदिल जात है, खुदा ऐसा कोई मामला नहीं फरमाता। तो मैं अर्ज कर रहा था इद्दत के हवाले से कि अपनी तज़ीन और आराइश करना, कोई ऐसा वैसा मामला करना, सजना संवरना, इसको कहते हैं इद्दत। यानी कि ये सजना संवरना ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर बाअमरे मजबूरी उसे घर से बाहर निकलना पड़ता है दवाई लेने के लिए, या घर में और कोई कफालत करने वाला नहीं, अपने बच्चों को पालने के लिए या कोई ऐसे वैसे मामले के लिए अगर घर से बाहर निकलना पड़े तो निकलना जायज़ है। लेकिन जब घर से बाहर निकलेगी तो बापर्दा होकर निकलेगी, बाहिजाब होकर निकलेगी। ये नहीं कि सही संवर कर वो बाहर गली में चले और चार लोग भी उसे देख रहे हैं, ऐसी हालत में नहीं निकलना चाहिए। ऐसी हालत में बिल्कुल निकलना गुनाह कबीरा है और उस जुमरे में आ जाएगा जिस तरह वो इद्दत को मुकम्मल ना कर रही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप दोनों तशरीफ लाए। जी नाज़रीन, ये थी आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये तलाक की जो वजूहात है इतनी बढ़ रही हैं, तो अगर इस पर काबू पाना है तो आप लोगों को अपने ऊपर, अपनी सोच पर काबू पाना होगा। वो किस तरह, जिस तरह के आप ये कंटेंट देखते हो तो उसको अपने दिमागों पर सवार करना छोड़ दें। जितना है उसमें खुश रहना सीखें। अल्लाह ताला ने आपके लिए आपका रिस्क, आपकी रोजी लिखी है, आप जहाँ पर भी वो आपको पहुँचा दी जाएगी। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम। देखते रहिए सुरूर रमज़ान सीजन 2। अल्लाह हाफिज़।